जैसा मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल दूंगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करें इससे पहले आइए चलिए पहले एक वीडियो देखते हैं। गौर से इस वीडियो को देखिए और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। Hi, I'm Nida Alia. I'm 4th year MBBS student and welcome to MSU Bangalore campus. My name is Nida Alia binti Muhammad Azman. I'm 24 years old. I've been studying in MSU Bangalore campus for the past 4 years, and today I'm going to take you to experience my life as a student in International Medical School MSU Bangalore campus. So this is the main campus where I did my preclinical years. I spent 2 years doing the preclinical years before I was posted in the hospital. I've studied anatomy, biochemistry, physiology and all the other preclinical subjects before I go to the hospital for clinical postings. So back in my preclinical days, I usually arrived here at around 8:15 because we have class at 8:30, and this is the entrance of International Medical School. Come in. So this is Bhagwan Mahavir Jain Hospital. This is where I've been doing my clinical postings for the past 1.5 years now, and I usually have class here from 8 till 5. So let me take you in. I am currently now in my primary care postings. So every morning once I arrive, I will clerk the patients, see the cases, and during the evening I will discuss the case with my doctors and my classmates, and we will discuss the management plans and diagnosis of the patient. MSU not only encourages its students to be excellent in academic and technical skills, but it also emphasizes on the development of soft skills both professionally and personally. The main initiative to develop these soft skills is through community engagement. In Bangalore, we carry out various activities to engage with the local, especially for those in the slum areas. We have HOPE programs, which is a civil engagement program where we aim to improve the quality of life of the locals. And then we have GPS Ramadan, which is a program organized during Ramadan to distribute the zakat. And we also have Shirting the Shirtless, where we distribute donated clothes to the unfortunate ones. Through all these programs, we hope to inculcate the culture of giving and grateful among all MSUians. So why do I choose medicine? There's actually an interesting story behind it. It all began when I was in my secondary school. So we were doing this lab experiment where we had to dissect a frog. So I was thinking at that moment, if dissecting a frog can be this interesting, I can't imagine the joy of dissecting a human being. So at that moment onward, I decided to choose to become a doctor. Now that I'm in this field, my interest grows more and more, especially when I start seeing patients and I start learning the subject in depth. So for me, medicine is a final frontier. It's a never-ending story. Every day there will be a countless new development in the drugs, in the management and in the diagnosis, and I get to apply all the knowledge to save life. And as cliche as it may seem, this job is very rewarding. There's no other job in this world that you can actually use what you have learned. You are licensed to save lives, and I can't imagine seeing myself doing anything else. Being a medical student, for me, consistency is key. There is no such thing as doing things last minute or burning the midnight oils. So most of the time for me, I would spend my time studying at home. But there will be days where I felt restless and I wanted to have a good cup of coffee. This is the place I would be. Furthermore, this is my favorite place. I want to have a discussion with my friends or just casually having drinks. Living far from my family can be tough at times, but my surrounding and friends here in Bangalore makes me feel so much at home.
I'm currently staying in an apartment which is provided by the university along with 2 of my housemates, which I'm so blessed with as they are so loving and caring. And the best thing is we share the same interests. During my leisure time, I will do the things which I love most, and over the weekend, I will spend my time with my friends doing some window shopping or watch some movies. So what I can conclude is that studying medicine abroad, especially in Bangalore, India, is not a bad idea after all. Any one of you who are interested to study abroad, why not add MSU Bangalore to your list? बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बात ये कि इसका नाम ये है मैनेजमेंट एंड साइंस यूनिवर्सिटी मलेशिया की। ये यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है मलेशिया के। और इसकी जो सबसे बड़ी बात करें, ये नाम अपने यहाँ पे MSU, वहाँ पे अगर लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको MSU करें तो बात करने में आसानी रहेगी। MSU एक वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर हम लोग विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो अपने आप में ये बहुत इस्टेब्लिश्ड नेम है MSU। MSU के साथ जो अपना प्लस पॉइंट, अगर आप इसकी QS रैंकिंग देखें, जो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी संस्था किसी भी यूनिवर्सिटी का पैमाना तय करती है कि वो उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो उसमें ये पूरी खरी उतरती है, जो कि है 541। अब इससे एक हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इससे आपको क्या, एक तरह के ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। इनका एक ऑफशोर कैंपस है। ऑफशोर कैंपस मतलब जो उनके देश के बाहर, वो कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? बैंगलोर। बैंगलोर में भी कहाँ? MS रमैया। आपने प्राइवेट कॉलेज का नाम बहुत सुना होगा रमैया का, शायद बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में, रमैया के बारे में तो एटलीस्ट बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। बहुत आप में से ज़्यादातर लोग MS रमैया को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत बड़ा नाम है प्राइवेट कॉलेज में, और साउथ में तो एक बहुत बड़ा ब्रांड MS रमैया, जो अपने सिर्फ नाम ही, मैंने बोला था अपने पिछले वीडियो में, नाम ही काफ़ी है। तो द बेस्ट पार्ट इज जो इनका ऑफशोर कैंपस है वो MS रमैया इनका बैंगलोर में है, उससे इनका कोलैबोरेशन है। और अभी तक क्या था कि जो उनके मलेशियन बच्चे होते थे उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी, तो वो 1 साल वहाँ पढ़ते थे और बाकी 4 साल वो यहाँ पे पढ़ते थे। और यही सेम क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने ऑफर कर रखा है अब हमारे इंडियन बच्चों को भी, कि आप 4 साल यहाँ पढ़ेंगे, मतलब बैंगलोर में, 1 साल वहाँ पढ़ेंगे। डिफरेंस थोड़ा ये आया है कि पहले ये था कि वो शायद आखिरी साल या दूसरा साल या तीसरा या चौथा कोई एक साल ऐसा होता था जिसमें बच्चा वहां जाके पढ़ता था, या शायद पहले ही साल ही वो मलेशिया चला जाता और बाकी 4 साल इस कैंपस में आ जाता था। लेकिन ड्यू टू कोरोना यूनिवर्सिटी ने अच्छा फैसला दिया कि नहीं, पहले साल हो सकता है, दूसरे तीसरे साल भी बच्चा, यानी चौथे साल तक भी आप मान सकते हैं, बच्चा यहीं रहेगा इंडिया में। वो रमैया के कैंपस में रहेगा, MSU के बैनर में रहेगा, वो यहाँ से अपना MBBS करेगा, और अपना जो बचा हुआ 1 साल है वो मलेशिया जाके करेगा। अब ये आप कहेंगे कि MS रमैया का इसमें क्या रोल है? MS रमैया इसमें सारे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, या जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए, हॉस्टल, हॉस्पिटल, जो भी एक बच्चे को टीचिंग, जो जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए वो सारा MS रमैया से ही बच्चे को मिलता है। उसी कैंपस में वहाँ पे MSU के साथ बच्चे हैं जो उनका पूरा टेक केयर MS रमैया ही करता है। तो MS रमैया ही इसका स्टेक होल्डर है, आप ये कह सकते हैं। वही पूरा यहाँ का कह सकते हैं, उनकी ही जिम्मेदारी पे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, और जो पढ़ाई होती है वो सेम है। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो हमारी पढ़ाई इंडिया में तो प्योर एज पर MCI पैटर्न है, बट ये MSU के जो बच्चे होते हैं जो इंडिया में भी रहेंगे, उनका पैटर्न वैसे ही होगा कि 2 साल वो बेसिक साइंस पढ़ते हैं, 2 साल वो क्लिनिकल साइंस पढ़ते हैं, और फिर उनका हाउसमैनशिप और जो भी उनका प्रोसीजर होता है। ऐसा क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो आप US से या अमेरिका का भी जो पैटर्न देखेंगे वो यही पैटर्न है जो फॉलो करता है अमेरिका। तो इनका क्या है कि जो कोरिकुलम डिजाइन में सेम US असेंबली पैटर्न है कि आपको पहले बेसिक साइंस पढ़ना है, फिर क्लिनिकल साइंस पढ़ना है। तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे पढ़ाई होगी। तो इसमें बच्चे को 2-3 बेनिफिट है। एक तो वो MCI के हिसाब से भी तैयारी कर रहा है, इंडियन एनवायरनमेंट में भी रह रहा है, इंडियन पेशेंट को भी दे रहा है, और पैरेलली वो अपने MCI के अलावा USMLE की भी तैयारी कर रहा है। और सेकेंड ईयर खत्म होते होते ये आपको USMLE 1 क्लियर कराते हैं। ऐसा
कमिटमेंट नहीं, लेकिन उनका पैटर्न ऐसा है कि ज्यादातर बच्चे यूएस एमएलई आराम से 1 क्लियर कर लेते हैं और बाय द एंड ऑफ योर करिकुलम एमबीबीएस यूएस एमएलई 2 आप क्लियर कर सकते हैं। इनका पैटर्न है, अगर आपका यूएस एमएलई 2 तक क्लियर है, यूएस एमएलई 1 और 2, तो आप आराम से माइग्रेट कर सकते हैं यूएस में एंड वहाँ पे अपना फर्दर कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूएस एमएलई 3 की तैयारी या वहाँ पे अपना जॉब रिलेटेड या क्लर्कशिप या कहिए हाउसमैनशिप या जो भी वहाँ पे आप रेजिडेंटशिप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब एक साथ कॉम्बो आपके लिए है कि आप इंडिया में भी रह रहे हैं, इंडिया के भी इन्वायरमेंट से भी काम कर रहे हैं, एमसीआई के हिसाब से भी पढ़ाई कर रहे हैं और आप यूएस के हिसाब से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये अभी तक का बहुत अनोखा, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से है। फीस अप्रॉक्स $1,000 के आसपास होगी, अप्रॉक्स मतलब जो कि वही 75 लाख के आसपास आता है टोटल आपका ट्यूशन के आसपास। रहने का खर्चा इंडिया का तो सस्ता ही होगा एनीवे। तो मैंने क्योंकि अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये उन बच्चों के लिए जो एक हाई बजट लेके चलते हैं, इंडियन प्राइवेट कॉलेज सोच के चलते हैं और उनको लगता है अगर इसी बजट में हमें और क्या ऑप्शन मिल सकता है, मैं फॉरेन नहीं जाऊँगा। तो ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए भी जो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं बाहर, पर्टिकुलरली यूएस या यूके जाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक सवाल उठाएगी ऐसा पता नहीं कुछ हो या बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो देखिए एमएसयू एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसको शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप गूगल करिएगा। और एमएस रमैया भी इतना बड़ा ब्रांड है कि जिसे किसी भी तरह का गलत रास्ते या गलत चीज़ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ही इतने जिम्मेदार, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और इन दोनों के साथ कोलैबोरेशन में अगर कोई चीज़ ऐसा प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा होगा। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा, आपको और जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी कांट फ्लाई, नहीं तो अब तक मैं वहाँ जाके आपको पूरा कैंपस भी दिखा देता। और इससे ज़्यादा जो भी जानकारी को आपको ज़रूर से अपडेट